Yesterday in extra class, I was discussing evolutes. Yes. What is evolute? Who will tell evolute? Evolutes. सर दो कर्व होते हैं। हाँ। तो सर उसमें से जब दोनों पे टेंजेंट बनाई जाती है तो एक दूसरे की टेंजेंट जो होती है परपेंडिकुलर होती हैं और उससे जो सरफेस बनता है उसको बोलते हैं इनवॉल्यूट। सरफेस को अरे सर वो था Second if the curve C is involute of the curve C1, then eventually the C1 will be evolute of that curve. शायद ऐसी था सर। शायद नहीं, कल आप नेक्स्ट यही था मैथमेटिक्स में शायद मतलब होता सर है। वो भूल गया मैं C1 और C भूल गया मैं और था स्टेटमेंट ऐसी थी। You have some curve C which is वो बनाए टेंजेंट दूसरे कर्व परपेंडिकुलर बनेगी सर, उसको कहते हैं evolute। सर if you have curve C which is yes, if you have a curve C which is involute to some curve C1. Yes sir. Suppose Yes, this sir. is involute C1 is evolute of C. and Sir, this then curve eventually is the C1 this curve is involute of this C1. Then C1 को हम evolute बोलेंगे, है ना? Evolute. Yes sir. तो अगर one curve is involute, then another curve will be evolute to the involute. ठीक है? इस तरीके से। So here concept is same. C भी तो C1 का इवैल्यूएट हो सकता है। हाँ हो सकता है, अगर C1 इवोल्यूट बनेगा तो C is the evolute of C1. लेकिन सर एक्सप्रेशन तो हमने C1 के टर्म में निकाली थी इसलिए C1 को इवोल्यूट मान लिया। जी जी ठीक है। तो अगर C इन्वोल्यूट है तो हम C1 को इवोल्यूट मान लेंगे और अगर आपको इन्वोल्यूट की इक्वेशन निकालनी है तो आप C कर्व मानेंगे और C1 को इवोल्यूट मानेंगे। ओके, तो इसके हम इक्वेशन निकाल रहे थे। इस कर्व को C1 से लेके we took position vectors of this. Suppose 2 points are there on C1, some point P1 R1 is there. Suppose some point is here, so I was taking it under some coordinate frame. Origin is the origin, so these are the position vector R1 R2 I was taking, and then the tangent of this will be, if it is a tangent, so it will be perpendicular to the tangent of this curve. ये concept. If it is T and it is T1, it is a tangent. Line है straight line. थोड़ा पैड पे ड्रॉ करना मुश्किल होता है. So it is your T1. And we know that for every point, so how I was drawing this? At every point there exists your trihedron, current trihedron. So we know if something is perpendicular to tangent, it will be lying in the normal plane. So we got this R1s, it was coming RS plus alpha S NS plus beta S ds. ये हमारी क्वेश्चन थी, because R1 is what? R1 is a vector which is lying in the plane which is normal to tangent plane. So normal to tangent plane is what? This is called normal plane, जिसमें आपके पास बाइनॉर्मल होगी, ये टेंजेंट है ना, और ये नॉर्मल होगा. तो ये जो सब वेक्टर्स है, they will be lying in the normal plane because they are perpendicular to this tangent. You know, this is the concept of T and NB, है ना. तो जो T के perpendicular होगा वो सब कहाँ लाई करेगा? इधर normal plane पे. So I can write the vector as a linear combination of this. ठीक है. फिर we differentiated it, dr1 over ds निकाला था हमने, है ना. इसको सॉल्व किया था and its value is coming. देखो इसको मैंने कल एक मिस्टेक लेक्चर में हुई थी, मैंने इसको T1 लिखा था. इट इज नॉट T1. T1 जब आएगा जब I will take dr1 over ds1, है ना. जब when I will take the parameter s1, I am not taking s1 parameter, so it is not T1. It will be only dr1 over ds. इसे just write dr1 over ds. It was coming r dash s plus by part alpha dash n plus alpha n dash plus beta dash b plus beta b dash. Okay. Now because dr1 over ds
dr1 अब it is dr1, तो dr1 over ds will also lying in the normal plane. तो dr1 over ds जो होगा वो वेक्टर, वो भी कोई वेक्टर आएगा यहाँ पे, that will also lying in the normal plane. So इसलिए जो dr1 over ds था, इसको we can write sum a times of alpha n plus beta b. इसको हम, क्योंकि आपका नॉर्मल प्लेन जो है वो क्या है, नॉर्मल प्लेन इज जनरेटेड बाय अल्फा एन प्लस बीटा बी, तो कोई जो dr1 ओवर ds है, ये भी इसी प्लेन की में लाई करेगा, कहीं पर इसी के पैरेलल होगा. सो आई कैन टेक दिस वेक्टर सम 8 टाइम्स. फिर हमने इसकी वैल्यू यहाँ पुट करी थी, इसे कंपेयर किया था, तो यू आर गेटिंग क्या आ रहा था, 1 माइनस अल्फा कप्पा इज इक्वल टू 0. सो यू गॉट अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन कप्पा. ये कल के लेक्चर में पढ़ी डिटेल पूरी है. इन शॉर्ट आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग ऑल द थिंग्स. सो अल्फा वाज 1 अपॉन कप्पा, क्योंकि इक्वेशन फाइंड करने के लिए यू नीड अल्फा एंड बीटा. इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे, देन इनके वैल्यूज पुट करेंगे सब, एंड देन कंपेयरिंग द लाइक टर्म्स. ये करा था ना, एंड देन यू गॉट अल्फा डैश माइनस बीटा टाउ इज इक्वल टू ए अल्फा एंड बीटा डैश प्लस टाउ अल्फा इज इक्वल टू ए बीटा. इसको मैंने क्या करा था, डिवाइडिंग. So you can take dividing, so you will be getting, it is coming how much, alpha upon beta is equal to कितना था ये, अल्फा डैश माइनस बीटा टाउ अपॉन बीटा डैश प्लस अल्फा टाउ. इससे अगर मैं टाउ की वैल्यू निकालना चाहूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आप देखिए, और टाउ को सॉल्व करेंगे. सॉल्विंग फॉर टाउ, solving for tau, so you will be getting tau is equal to beta alpha dash minus alpha beta dash upon alpha square plus beta square. ये आ जाएगा. इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके टाउ को सब्जेक्ट बना के तो ये आ जाएगा. एंड विच इज, इफ यू सी, इट इज द डिफरेंशिएशन which I can say it is DDS of cot inverse beta upon alpha, या tan inverse alpha upon beta लिखने की बात है. cot inverse beta upon alpha, this is the angle, so it is the differentiation of this. जब हिसाब करेंगे cot का कितना होता है डिफरेंशिएशन, cot inverse x is how much, ddx of cot inverse x 1 upon 1 minus x square. क्या होता है 1 upon अंडर रूट 1 minus x square upon x square plus y square. minus 1 upon 1 plus x square. माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. जब आप इसे सॉल्व करेंगे, देखिए बीटा अपॉन अल्फा, तो माइनस साइन से एडजस्ट हो जाएगा और डिनोमिनेटर जा जाएगा. ओके, सो इट इज ddS ऑफ cot इनवर्स ऑफ दिस. तो ये टाउ निकल के आया. तो इससे अगर मैं, ये क्या है, इट इज व्हाट, इट इज योर टाउ. सो व्हाट आई कैन राइट, इफ आई विल इंटीग्रेट, तो इट विल बिकम, इसे सॉल्व करते हैं. सो यू गॉट टाउ इज इक्वल टू ddS of cot inverse beta upon alpha. Now integrating, so you will be getting beta is equal, integrate करें और cot को इधर शिफ्ट कर दें, तो it will be coming alpha times cot of integrate tau of ds plus c constant term, ये एंगल में आ जाएगा, and this is coming beta is equal to how much, इसका हो जाएगा tau ds plus c and just shift cot is here and alpha is, and alpha की value you have calculated, it was 1 upon kappa. It is coming cot of tau ds plus c. This is your angle, cot of this cot. So in this way you got your beta. So finally the equation of the evolute, the equation of evolute
evolutes in fact, because it's a family. We have a constant c, so it represents a family of evolutes. For each choice of c, you will be getting different curves. So it will be given by r1s is equal to r of s plus 1 upon kappa n. जनरल इक्वेशन ये थी आपकी, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया हमने इसमें, अल्फा n बीटा b, and beta is plus 1 upon kappa cot of tau ds plus c and vector b. So it is the equation of evolute. Okay. Now here you can take particular cases for the plane curve. Here you can see, note, if C is plane, if the curve C suppose it lies in a plane, this lies in a plane, then what will happen? For the plane tau is how much? Zero. Torsion is 0 है ना? For a plane tau is 0, for the line curvature Yes, is sir. 0. तो लाइन की तो बात कर ही नहीं सकते, आपको मालूम है इसका वाला, क्योंकि लाइन के केस में कर्वेचर 0, you cannot have evolute here. But we can talk about if the curve C lies in the plane, then tau is equal to 0. Torsion is 0. So in that case, the equation of evolute R1 is equal to RS plus 1 by kappa n. और ये जब 0 हो गया तो आपके पास क्या बचेगा? सिर्फ कॉट ऑफ सी. कॉट ऑफ सी क्या है? तो कुछ कांस्टेंट हो गया, तो उसे मैं कुछ कांस्टेंट से रिप्रेजेंट करता हूँ, सपोज गामा अपॉन कप्पा बी, वेयर गामा इज व्हाट? कॉट ऑफ सी व्हिच इज कांस्टेंट, सम कांस्टेंट. उस केस में इक्वेशन आपकी ये बन जाएगी, पर्टिकुलर केस हो जाएगा. ओके, इज इट क्लियर? So it was Yes, sir. evolute. It was your evolute. और involute की क्वेश्चन क्या है? involute की याद है किसी को? R1 is equal to R plus C minus C minus S T. T, है ना? ये आपकी इक्वेशन थी involute की, C minus S T. So let us take a couple of problems, then we will start. We will take another theorem. One problem. Find the equation of an evolute of a circle. Find the equation of the involute of the circle. R is equal to A cos theta I plus A sin theta j. A is some positive. Circle है, इसका हमें evolute निकालना है. Circle, if I am taking, this is suppose a circle. This is a circle. इसका evolute किस तरीके से आएगा? इससे हमेशा परपेंडिकुलर रहे ना, तो इट विल बी जनरेटिंग लाइक दिस. इस तरीके से कोई कर्व अगर मैं ले रहा हूँ, इट विल बी रनिंग लाइक दिस. ये कोई भी अगर हम पॉइंट पर टेंजेंट लें तो इट विल बी कमिंग 0. यहाँ if you have some tangent here, suppose at this point, so this tangent will be what? Perpendicular to the tangent. अगर यहाँ पर कोई टेंजेंट है तो इट विल बी, ये अगर C, इट इज योर C1, इसकी क्वेश्चन मुझे फाइंड करनी है. इट इज योर सर्किल C. सो इफ आई हैव सम पॉइंट हियर, हियर जो टेंजेंट T है
है ना, ये इसकी जो टेंजेंट T1 है इसके परपेंडिकुलर है, इस तरीके से ही चलेगा, इट विल बी मूविंग लाइक दिस, ऐसा कर्व प्लॉट होगा इस तरीके से। जैसे आप कोई एक सर्किल, अगर चरखी कहीं वो देखा है जो पतंग उड़ाते हैं चरखी में वो रहती है, मांझा लिपटा रहता है, ठीक है, वो सर्कुलर है, उसको अगर आप जो उसका जो धागा वो होता है, धागा उसमें जो मांझा होता है उसे टाइट करके जब खींचेंगे और एक कर्व बनेगा तो वो कैसा हो रहा होगा, ऐसा राइट एंगल में आता हुआ जा रहा होगा सारे के साथ, है ना। उसको अनवाइंड करें, जस्ट कीप अनवाइंडिंग द स्ट्रिंग, तो इट विल बी लुकिंग लाइक इट इज मेकिंग अ कर्व, जो आपका इन्वोल्यूट बनेगा उस सर्किल के, क्योंकि उसमें सर्कुलर उसमें रहता है स्ट्रिंग जो होता है। सो हेयर, so if I am taking this is your origin, so you know this the position vector of this vector will be r, what is c, and position vector of this will be how much, r1, है ना, इस पॉइंट का जो पॉइंट लिया आपने on c1। so here if it is starting from here, है ना, थीटा इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होगा कर्व एंड इट विल बी रनिंग लाइक दिस, जो इन्वोल्यूट होगा। सो इफ s is a natural parameter, तो पता ही है हम नेचुरल पैरामीटर ले रहे हैं along the circle such that s is equal to 0 at theta is equal to 0। तो थीटा 0 पे s कितना होगा, s 0, है ना। ये स्टार्ट Yes, कहाँ sir. से होगा, हाँ ये स्टार्ट यहाँ से होगा, ये जो डिस्टेंस है आपकी, अगर मैं यहाँ पे ये डिस्टेंस ले लूँ तो दिस डिस्टेंस इज, हम लेंथ पैरामीटर ले रहे हैं, जो लेंथ है दिस डिस्टेंस इज s, तो थी उसमें फिगर में कितनी आई थी, मॉड c माइनस s, यहाँ पर s क्यों आ रही है, क्योंकि ये जो कर्व चल रहा होगा तो यही लेंथ हो जाएगी इस टेंजेंट इसके बीच में, इसके टेंजेंट और इसके बीच में, बिकॉज एट थीटा इज इक्वल टू 0 इट इज s इज इक्वल टू 0 एंड यू आर मूविंग इन दिस वे। इक्वेशन क्या होगी, थीटा 0 पे s 0 है, तो आपकी जो इक्वेशन थी r1s इज इक्वल टू rs प्लस c माइनस s and t। now at theta is equal to 0 you have r10 is equal to r0 plus s is 0 ct, है ना। अब what r10 and r0, where is r10 here, है ना, r10 means the position vector of c1 at 0 and r0 is what, the position vector of c at 0, तो both are same होंगे। So at the point 0, what is r10? This point. What is r0? This point. So it means what? C is equal to 0. C 0 है. That means equation of evolute will be what? Equation of involute is, यहाँ पे एक्चुअली इनिशियल कंडीशन हमें मिल गई, तो इनिशियल कंडीशन से हमें कांस्टेंट की वैल्यू पता चल गई। अब ये पर्टिकुलर कर्व हो गया, अगर इनिशियल कंडीशन नहीं पता थी तो इट वाज अ जनरल equation of involutes। now when you have an initial condition you got equation of involute is r1s is equal to rs minus c0 हो गया, तो minus st, है ना, इस c को 0 को उठा के रख दो इस जनरल इक्वेशन में, तो 1 will become this। so it is the equation of involute for this circle। okay, बताइए। सर ये R10 और R0 एक से क्यों है ये बता दें। ये पोजिशनल वेक्टर है ना, 0 का मतलब एट अ पॉइंट 0, तो एट अ पॉइंट 0 पोजिशनल वेक्टर इज व्हाट, दिस। एट अ पॉइंट 0 r10 भी यही होगा, r0 भी यही होगा, ठीक है। ठीक हाँ क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होगा ना। हाँ, तो इसलिए आपका ये सेम होंगे जब एट अ पॉइंट दे विल बी एट अ सेम प्लेस,
क्या ये नथिंग बट जीरो, इसलिए कैंसिल होगा, जीरो हो गया ये, है ना। तो बाय दिस इनिशियल कंडीशन हमें एक ये पता चल गया कि सी जीरो है। सी जीरो का मतलब यू गॉट अ इन्वोल्यूट करस्पॉन्डिंग टू सर्किल व्हिच इज दिस कर्व। अब ये फैमिली, इट इज नॉट फैमिली, इट इज अ सिंगल कर्व। फैमिली कब हो रही थी, जब यू हैव अ कांस्टेंट, ये वाज इट वाज द फैमिली। सो नाउ आई गॉट दिस। अब मुझे क्वेश्चन निकालने के लिए क्या निकालना है, व्हाट इज दिस एस। एस क्या होता है, यू नो एस इज द आर्क लेंथ। एस क्या है, इट इज अ नेचुरल पैरामीटर, आर्क लेंथ पैरामीटर। तो एस की वैल्यू क्या होती है, इफ इट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, तो आई कैन टेक 0 टू, अब यहाँ ध्यान रखो पैरामीटर थीटा है, देखो यहाँ पर, है ना। ये टी तो टेंजेंट वेक्टर होता है, इसलिए मैं टेंजेंट लगा रहा हूँ। हियर द पैरामीटर इज थीटा, सो इट विल बी 0 टू थीटा मॉड ऑफ आर डॉट थीटा टी थीटा। ये तो फॉर्मूला है आर्क लेंथ का, एस का। यस सर। यस सर। तो ये कितना हो गया, 0 टू, अब आर डॉट, इसका आर डॉट निकाल लीजिए, उसका मॉड। तो आर डॉट हो जाएगा आपका ए माइनस ए साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा, है ना। और इसका जब आप मॉड लेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर मॉड आर डॉट इज हाउ मच, आर डॉट इज माइनस ए साइन थीटा आई प्लस ए कॉस थीटा जे। इसका जब मॉड लेंगे तो क्या जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। सो हाउ मच इट इज, ए बचे। और डी थीटा करा आपने थीटा, ये थीटा है ना। सो यू गॉट एस इज ए थीटा। इसे उठा के वापस पुट कर दिए इस इक्वेशन। सो इक्वेशन 2 implies R1 is equal to RS। RS का मतलब है दिस, है ना। RS is what, A cos थीटा। मैं चाहे से अगर मैं ब्रैकेट में लिखना चाहूँ तो इससे नोटेशन को मैं ये भी लिख सकता हूँ, A sin थीटा, एक ही बात है। यू कैन रिप्रेजेंट इन दिस वे और A cos थीटा कॉमा A sin थीटा, ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात होती है, both are the same representation। RS is this, it was your RS and minus A S is A थीटा, है ना, A थीटा। और T कितना है, T और निकालना है अभी हमें, देखो T की वैल्यू और रखनी है यहाँ पे भी। तो T वाज हाउ मच, T क्या होता है, व्हाट इज T, टेंजेंट वेक्टर आर डैश। R डैश होता है, लेकिन यहाँ पर R डैश में नहीं है, यहाँ जनरलाइज पैरामीटर में देखा है, थीटा है ना, R आपका थीटा के टर्म में है। तो आर डॉट होगा फिर R डॉट अपॉन मॉड R डॉट, है ना, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। तो T इज R डॉट अपॉन मॉड R डॉट। मॉड R डॉट तो आपने अभी निकाला ही आया, मॉड R डॉट हाउ मच, कितना आया था, A, है ना, और R डॉट ये है आपके पास, तो कितना A से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, A थीटा, T विल बी हाउ मच, साइन माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा, ओके, माइनस साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ए कैंसिल हो जाएगा ना नीचे मॉड R डॉट से, नीचे ए आएगा, है ना। T की वैल्यू रखी मैंने यहाँ पे, इज इट क्लियर। थीटा थीटा और सर वो जो आएगा थीटा, थीटा तो इंटीग्रेशन का आया था, मॉड R डॉट तो सिर्फ ए आया था ना। अच्छा हाँ ठीक है मॉड R डॉट इज हाउ मच, ओनली ए, इसका ठीक स्क्वायर है कर ठीक दें है। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो आपका T कितना हो गया, साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉमा कॉस थीटा। इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो इट विल बिकम हाउ मच, अभी टर्म एक साथ दे चाहे तो भाई, ये आई का कोएफिशिएंट है, जे का कितना हो गया, ए कॉस थीटा माइनस ए थीटा साइन थीटा, और यू कैन से ए को ए, सो इट विल बिकम ए टाइम्स ए कॉस थीटा माइनस ए थीटा साइन थीटा। अगर आई के टर्म्स में लिखेंगे आप तो यू कैन राइट ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, क्योंकि बाहर माइनस है ये, तो माइनस माइनस प्लस आई, तो आई कंपोनेंट होगा, एंड व्हाट अबाउट जे, ए साइन थीटा, है ना, प्लस
ए साइन थीटा, ये कोई मैं कॉमन ले लेता हूँ, और यहाँ कितना बचेगा माइनस माइनस ए थीटा cos थी माइनस cos थीटा थीटा। कॉस थीटा, ये हो जाएगा जे का कंपोनेंट, है ना, ये जे इस पूरे के साथ। इट इज द इक्वेशन ऑफ द इन्वोल्यूट, ए एंगल ऑफ दिस आई प्लस ए एंगल समथिंग जे, है ना। ऐसे आप इसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं, हेलिक्स की अपने आप करेंगे, प्रॉब्लम दे रहा हूं मैं आपको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ involute, find the equation of the involute of the helix. Of the helix, हेलिक्स इक्वेशन आपको पता ही है क्या होती है, R is equal to yes A cos t A cos t plus B A sin sin A t sin plus dt। BT। है ना, ये होता है, या थीटा या टी दे या टी दे रखा है, दैट इज अ इसकी हेलिक्स इक्वेशन निकालनी है आपको। तो यहाँ पर यू हैव टू फाइंड योर टी, यू हैव टू फाइंड योर एस, एंड देन पुटिंग इन द इक्वेशन R1 is equal to R प्लस C माइनस एस टी। ठीक है, टी आप ऐसे ही निकाल लेंगे जो फॉर्मूला बताया अभी मैंने आपको, R डॉट अपॉन मॉड R डॉट इसका, है ना, S विल बी 0 to T मॉड ऑफ R डॉट टी डी टी। इन सब वैल्यूज को उठा के इस इक्वेशन में रखते हैं, तो ये आपका हो जाएगा। सर C क्या होगा सर? इनिशियल कंडीशन कैसा है? सी यहाँ पर रहेगा ना, यहाँ पे सी नहीं खत्म होगा क्योंकि यहाँ इनिशियल कंडीशन नहीं दे रखी आपको, तो सी आपके आंसर में ऐसे ही रहेगा। ठीक है, वहां पे यहाँ इनिशियल कंडीशन थी, यहाँ पर नहीं है ऐसा, सर्किल के केस में थी वो, तो सर्किल आपका ऐसा करवा रहा था, which I was taking that थीटा 0 पे एस 0, इस तरीके से आर्क लेंथ इसकी स्टार्ट, भाई इसकी ये इन्वोल्यूट कब स्टार्ट हुआ था, इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर थीटा कितना है ऑन एक्स एक्सिस 0 एस 0, फिर आपके पास इस तरीके से इंक्रीज है। ओके, तो यहाँ कर्व में सी रहेगा आपका कर्व फैमिली बना के दिखा दिया एक बार हेलिक्स का सर, वो समझ में कर्व नहीं आया सर, कर्व कैसे किस तरीके से बनेगा? ये हाँ हेलिक्स का कैसे बनेगा ये? हेलिक्स में एक्चुअली हेलिक्स ऐसा का है, हेलिक्स तो आपका इस तरीके से है, हेलिक्स इज लाइक दिस, है ना, तो यहाँ पर तो आपका जो कर्व बनेगा वो कर्व इस तरीके से आएगा कि विच इज परपेंडिकुलर टू एवरी कर्व, तो वो भी कुछ इस तरीके से आ रहा होगा, एक सीधा कर्व नहीं आएगा, ऐसा कोई कर्व नहीं आएगा कि आप ऐसा कोई कर्व ले लें जो सबके टेंजेंट हो जाए, है ना, ये वाला वो इमेजिनेशन से करना पड़ेगा क्या? है। ये वाला इमेजिनेशन से करना पड़ेगा क्या? हाँ, इसकी जब आप क्वेश्चन निकालेंगे तो वो भी कुछ हेलिक्स टाइप की ही आएगी भाई, अगर हेलिक्स के परपेंडिकुलर आएगी सर, वो है इसके ना, ऊपर वो ओवरलैप कुछ होती हुई। हाँ, वो कुछ हेलिक्स टाइप का ही कर्व बनेगा, कुछ इस तरीके, वो उसके वो कोऑर्डिनेट्स अलग आएंगे, जब आप सॉल्व करेंगे उसे आप प्लॉट करके देखना चाहें तो देखिएगा, कोशिश करके मैटलैब या मैथमेटिका से अगर हो जाए, अगर उस पर चल कर सकते। लेकिन हेलिक्स का जो इन्वोल्यूट आएगा वो हेलिक्स ही आएगा, क्योंकि हर पॉइंट पे आपको कर्व चाहिए, इस पॉइंट पे टेंजेंट हो, तो वो भी कुछ इस तरीके से कुछ करवा रहा होगा, है ना, कुछ इस तरीके से, या पता नहीं कैसा होगा, जब आप उसको प्लॉट करेंगे उसकी इक्वेशन आएगी कुछ हेलिक्स टाइप की, जैसे सर्किल की देखिए, सर्किल की इक्वेशन किस टाइप से है, इस टाइप का कर्व आया, ए ऑफ सम एंगल, पहली लाइन जो आपने लिखवाई है एस इज नेचुरल पैरामीटर along the हाँ। circle ST एस इज इक्वल टू 3 क्या चीज लिखवाई है बस समझ में? ये हमने ये लिखवाई थी कि आपके पास जब सर्किल होगा और सर्किल के लिए जब आपका कर्व स्टार्ट होगा तो वो कर्व विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, है ना, और यहाँ से यहाँ पर क्या होगा, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी और जो इसकी टेंजेंट है, तो एट दिस पॉइंट इस पे इसकी टेंजेंट जो है आपकी क्या आएगी, इसके टेंजेंट के परपेंडिकुलर। तो ये अगर कोई कर्व है और इस कर्व का अगर मैं यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट मान लूँ तो इन्वोल्यूट भी तो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो सर्किल के केस में जो इन्वोल्यूट आता है वो कर्व आता है कि इट विल बी गोइंग लाइक दिस, और यहाँ पर जो भी टेंजेंट होगी, हर पॉइंट की जो टेंजेंट होगी, है ना, ये इसके परपेंडिकुलर आपको एक टेंजेंट यहाँ पर मिलती चली जाएगी इस तरीके से, ये हमेशा एक परपेंडिकुलर मिलती जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास सर्किल के केस में ये था
कि you will be getting a curve which will be running like this. तो इसे ऐसे सपोज कर सकते हैं कि जैसे आपके पास you have something on the some pulleys there. जैसे कभी वो देखा है जब ये बोरिंग होता है, बोरिंग में जब वो लेके आते हैं एक गोल उसमें वो पड़ लगा रहता है लोहे की, क्या नाम है, जंजीर जैसी होती है ना जिससे खींचते हैं पुली को जब बोरिंग होती है। जी सर, जी सर, जी सर। अब वो बोरिंग में जो वो लोहे की जो डोरी है वो से क्या बोलेंगे, लोहे की जो स्ट्रिंग है वो सर्कुलर होती है उसमें लिपटी हुई, ठीक। और नीचे जो जा रहा होता है वो वेट्स के साथ वो परपेंडिकुलर जा रहा होता है। अब जब आप उसको अनवाइंड कर रहे हैं, जब खोल रहे हैं तो क्या हो रहा है कि वो जो सर्किल बन रहा है उस सर्किल के साथ जो वो अनवाइंड हो रहा है वो आपका इन्वोल्यूट बना रहा है उसमें, दैट इज, क्योंकि वो उस पे जो टेंजेंट आएगी वो सर्किल के हमेशा क्या नाम है, ऑर्थोगोनल आएगी सर्किल के टेंजेंट्स के, ऐसे समझो। तो वो जो कर्व होगा वो इन्वोल्यूट होगा। या कभी ऐसा करिएगा कि जब अगर पतंग उड़ाई हो किसी ने, आई डोंट नो पतंग आप लोगों ने उड़ाई नहीं, जब आप पतंग उड़ाएंगे ना तो जो जिसमें चरखी में जो वो लिपटी हुई होती है आपकी रील जी है ना मांझ, जी, उसको अब पतंग उड़ा के तेज हवा में छोड़ दो, अब उसको पकड़ के दोनों हाथों से लूज कर दो तो क्या होगा, वो धागा खुद ही खुद इसमें चला आगे बढ़ती जाएगा रहेगी वो तो, और वो खुद तो ही वो खुद टाइट आगे हो बढ़ती जाएगा। पतंग। हाँ, तो वो जो सर्किल है वो जो डोर उसमें धागा लिपटा हुआ आपका शादी या मांझा जो होता है वो तो सर्कुलर फॉर्म में जी होगा, लेकिन जी वो जी जो खुद ही खुद आगे धागा बढ़ रहा है उसको अगर आप देखेंगे वो जी। ऐसा होगा, वो सर्किल के टेंजेंट जा रहा होगा, है ना, इस तरीके से, हाँ जैसे सर, जी सर्किल जी के जी जी टेंजेंट जी है। जी 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 तो वो जी जो आपका सर, सिक्स की बनेगा, तरह, सिक्स की तरह, सिक्स हाँ, की तरह। वो जो कर्व बन रहा होगा वो जो मांझा अब आपका कर्व बनाएगा और जो मांझा आपका सर्कुलर लिपटा हुआ उसका इन्वोल्यूट होगा, वो हमेशा परपेंडिकुलर जाएगा, ठीक है। इट इज लाइक यू आर जस्ट अनवाइंडिंग अ स्ट्रिंग फ्रॉम द पुली। Unwinding a string initially stretched along the curve, so that the string always remains tight. तो इसलिए यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में ये जीरो लिया था कि थीटा 0 पे s 0 है, ये इनिशियल कंडीशन थी। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आपको एवरी टाइम यू विल बी गेटिंग डिफरेंट कर्व, सो आई कैन नॉट से एट सम पॉइंट योर s is 0 और so I have to do like this, ठीक है। तो सर लास्ट यहाँ पर क्या थ्योरम, कंडीशन है? यहाँ पर सी में ही आंसर आएगा, इसमें इसका आंसर सी के टर्म्स में आएगा। अगर कोई इनिशियल कंडीशन ये प्रॉब्लम में दे दे, अगर प्रॉब्लम में दे दे कि सपोज दैट एट सम पॉइंट s is 0 या एट सम पॉइंट s is पाई बाई कुछ अगर वैल्यू दे दे, उस केस में हम वैल्यू रख देंगे तो सी निकल आएगा आपका, बस ये ठीक है है, ना। जैसे आपके पास इक्वेशंस होती हैं, जब इक्वेशंस में आपके सही पास है, सही है। कंडीशंस होती हैं उससे हम कांस्टेंट निकाल देते हैं, अगर कंडीशन नहीं है तो जनरल इक्वेशन आती है, जैसे आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में किया होगा। So last we have fundamental theorem of, last topic है आपका ये fundamental theorem of for space curve, space curves की fundamental theorem, there are several fundamental theorems, this is a fundamental theorem for space curves. What it states, let kappa s and tau s be two arbitrary continuous functions, be two arbitrary continuous functions, okay, then there exists except for position in space, except for position in space, ध्यान से पढ़ते रहे, वैसे तो मैं लिख रहा हूँ, one and only one, that means unique space curve C for which kappa s
is the curvature. Tau s is the torsion, and s is the natural parameter along C. Along means what? क्या हुआ भाई? ये जरा पढ़ो, पहले तो पढ़ के सुनाओ भाई जरा. Let Ks and Ds tau s be arbitrary constant functions, then there exist Continuous function. Constant नहीं, continuous functions. continuous functions, then there exists except for position in space. One and only one space curve C for which kappa s is the curvature, tau s is the torsion, and s is the natural parameter along C. Means what? कि in the space, है ना, for kappa s as the curvature and tau s as the torsion. S आपका क्या है? Natural parameter. There exists a unique space curve. Means if you have kappa s and tau s which represents the curvature and torsion, तो उस curvature torsion के लिए there will be a unique space curve except for position in space. मतलब कि position कुछ change हो सकती है कि यहाँ से उठ के यहाँ हो जाए, यहाँ हो जाए, but the curve will be unique for each kappa s and tau s, है ना? This is the fundamental theorem. If you have some kappa s tau s, तो ऐसा नहीं होगा कि उस kappa s tau s के लिए you will be having more than one curve, है ना? It will not happen. हर curve के लिए, हर kappa s and tau s के लिए there will be only a unique space curve, है ना? Exist करेगा. There exists actually, है ना? तो ये existence theorem है और uniqueness भी है इसके अंदर. Exist कर रहा है और unique है. So it is the fundamental theorem for space curve. इसका प्रूफ मैं कल करूंगा, टाइम नहीं है. तो हम ये भी कह सकते हैं ब्रीफ कि कर्वेचर एंड टॉर्शन में भी प्रेस्क्राइब्ड एज फंक्शन ऑफ द अर्थ है ना. इसमें ये भी है, कर्वेचर एंड टॉर्शन दे आर द फंक्शंस ऑफ आर्क लेंथ इन फैक्ट. इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ, इसको सोचिएगा इसको. और टुमारो आई विल कंटिन्यू. ओके सर. On Monday I will continue with this and then we will see. Sir, कल किस टाइम लेंगे एक्स्ट्रा क्लास? मंडे में लेंगे. अब संडे है कल, तो मंडे में क्लास लेंगे. सही है, सही है, मंडे में अस्सलाम डिसाइड वालेकुम। करेंगे. मंडे में डिसाइड करेंगे ओके, एक्स्ट्रा क्लास का. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. हम दो